Hello students. Firstly, welcome to you all in your new class, class 5th. So let us start with our first unit, numbers up to 99 crore 99 lakh 99,999. So firstly, we will discuss about what you have studied in your previous class. Let us firstly discuss about the place value chart which you have discussed in your class 4th, which is up to place 10 lakh, or you can say that you have studied about the 6 digit number, that is up to 10 lakh place. So firstly we will discuss about the place value chart. So firstly you have discussed about the 6 digit number in which there are 3 periods, ones, thousand and lakhs, and there are places under the ones period, ones, tens and hundred, and the thousand, in the thousand period the places are thousand and 10,000, and in the lakh period the places are lakh and 10 lakh. So this is the place value chart for a 6 digit number. आपके वंस पीरियड में ओनली 3 ही प्लेसेस आती हैं, थाउजेंड में 2 प्लेसेस एंड लैख में 2 प्लेसेस. ओके, सो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1, विच इज़ राइट द पीरियड, प्लेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द इन सर्कल डिजिट इन द फॉलोइंग न्यूमरल्स. मीन्स आपको क्या करना है कि आपको नंबर गिवन है एंड आपको उन नंबर्स का पीरियड, प्लेस एंड प्लेस वैल्यू राइट करनी है जो डिजिट इन सर्कल है, मीन्स सर्कल की हुई है डिजिट. यू हैव टू राइट ओनली द पीरियड, प्लेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द दैट इन सर्कल डिजिट. ओके, फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1, विच इज 48,624, in which we have to find the period, place and place value of the digit 8. So firstly we will arrange that number in our place value chart. So we will start from the last, that is firstly we will write the 4, 2, 6, 8 and 4. that is हमने अरेंज कर दिया इस नंबर को. नाउ वी हैव टू सी अबाउट द नंबर 8, अबाउट विच वी हैव टू फाइंड द पीरियड, प्लेस एंड प्लेस वैल्यू. सो वी हैव टू सी दिस नंबर 8. 8 हमारा कहाँ आ रहा है, देखिए आप, इट कम्स अंडर द पीरियड. किस पीरियड में आ रहा है ये, अंडर द थाउजेंड पीरियड. सो इट्स पीरियड इज 1000. its period is 1000. Now we have to see its place value, the place value of the digit, the same digit which is circled. जो डिजिट सर्कल की हुई है उसी की हमें आगे प्लेस देखनी है. तो 8 की प्लेस क्या है हमारी, 1000. क्या है, 1000. सो वी विल राइट इट हेयर 1000. नाउ द प्लेस वैल्यू ऑफ द सेम डिजिट 8. प्लेस वैल्यू, व्हाट इज़ प्लेस वैल्यू? प्लेस वैल्यू क्या होता है कि वो नंबर हमारा किस प्लेस पर आया है, 1000 पर आया है. तो जिस प्लेस पर आया 1000, 1000 क्या होता है, 1000 ना. सो जिस प्लेस पर होता है उस प्लेस को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं. मीन्स 8 मल्टीप्लाई 1000 इज 1000. सो इट्स प्लेस वैल्यू इज 8000. यू हैव डिस्कस्ड इट प्रीवियसली. सो इट्स प्लेस वैल्यू इज 8000. और आप ऐसे भी देख सकते हो कि जिसकी आपको प्लेस वैल्यू निकालनी होती है उसके बाद कितनी डिजिट्स मेंशन है. देयर आर 3 डिजिट्स आफ्टर इट, सो देयर आर 3 zeros आफ्टर द नंबर 8. So it will be 8000. Similarly you can do the other questions. You can see that I have made a table for it, so it will be easier for you. Now the next question, rewrite the following in ascending order. Ascending order means from smaller to bigger. That means we have to arrange the given number from smaller to bigger. छोटे से बड़े नंबर में लेना है. It is already done by you in your class 4, but still we will discuss it. स्मॉलर टू बिगर मतलब हमें सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लेना है. जो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर होगा दैट विल कम फर्स्ट. अब स्मॉलर नंबर हमें कैसे पता चलता है? फर्स्टली वी हैव टू सी द नंबर ऑफ डिजिट. in the number which have the smaller number of digit, it will be the smaller number of course. So here we can see that in the first number there are 6 digit, in this 5 digit, 6 digit, 6 digit. So सबसे smaller कौन सा हुआ, that one. So firstly we will write here the smaller number is 43,865. This will come first. Now we can see that the other 3 numbers are of the same digit. There are 6 digits in the other 3 numbers.
in this 6 digit, in this 6 digit, and in this 6 digit. So in that case, what we have to see, we have to see the places of the numbers. Firstly, we will see the ones place is same. Now we will see the tens place is also same, which is 5 in the 3 case. Now we will see the hundred place. In the hundred place, there is a 6 and there is a 6 and there is a 8. So which one is smaller? 6 is smaller than 8. That means we have two numbers which is smaller. Now again we have to see the अदर प्लेस. अब अदर प्लेस में हमें फिर से आना होगा क्योंकि हमारी ये प्लेस तो सेम आ गई ना. सो वी हैव टू सी द 1000 प्लेस. सो इन द 1000 प्लेस देयर इज अ 3 एंड देयर इज अ 8. सो विच वन इज स्मॉलर? 3 is smaller, means this number have the smaller digit at the 1000 place, but still we have to see the 10,000 place. At the 10,000 place there is 8 and there is 3. So we can see that that number is 83 and that one is 38. So which one is bigger or which one is smaller? This one is smaller, na, 38. Or you can say that if we pronounce this number 4,83,654 and 4,38,654, that means this number is smaller than this number. So we will write this number firstly. So here we will write 4,38,654. So we have our second number. Now the third number, we have the two number remaining, this one and this one. In both number we can easily see that this number is smaller and this one is bigger, because it is 4,83,000 and this is 4,38,000. That means this one is smaller. So we will write here 4,38,854. So the number remaining, we will write it. The number is 4,83,654. So we have arranged it in ascending order. Ascending means smaller to bigger, मतलब छोटे से बड़े में हमने इसको arrange कर दिया. You can also do the second part in the same manner. So you can do it yourself. Now the third question, write the number name for the following numbers. That means हमें क्या करना है, इनका नंबर नेम, मतलब हम इन नंबर को प्रोनाउंस कैसे करते हैं, कैसे बोलते हैं हम, या इन नंबर को कैसे लिखते हैं. अभी हम इस नंबर को ऐसे तो नहीं बोल सकते ना 53701. नो, there is a method to pronounce this number. So firstly we will do for the question first, that is 53701. we can't pronounce like this ना, जैसे मैंने pronounce किया अभी हम ऐसे तो नहीं बोल सकते. there is a method for this. For that we have to use our place value chart, as you remembered. For that firstly we have to write the places for the given number. We will start from the last. Firstly 1, that comes under ones place, then tens, then 100, then 1000 and then 10,000. Okay, we have write it. Now remember क्या होता है, देखो कि हमारे जो प्लेसेस होते हैं वो किस पीरियड के अंदर आ रहे हैं. वी हैव टू रिमेंबर दैट ऑल्सो, कि वो किस पीरियड के अंदर आए हैं. वो पीरियड उसके साथ प्रोनाउंस किया जाता है. जो भी नंबर किसी सेम पीरियड के अंदर आ रहे हैं वो एक साथ प्रोनाउंस किए जाएंगे और बाकी फिर वो सेपरेट हो जाता है. जैसे अब अगर हम इस 53 की बात करें, दैट बोथ कम्स अंडर 1000 पीरियड ना, दोनों 1000 पीरियड के अंदर आ रहे हैं, तो वी विल प्रोनाउंस इट टुगेदर, नॉट 53. वी विल प्रोनाउंस इट लाइक 53. So 53 comes under which period? 1000 period. So we will pronounce this 53,000. क्या आ जाएगा इसका? 53,000. Now 1000 period is over. 1000 का हमारा काम खत्म हो गया. Now the next period start, which is ones period. This 3 numbers comes under the ones period. तो हम इन तीनों नंबर को एक साथ प्रोनाउंस करेंगे. 701 नहीं होगा, ये तीनों एक साथ बोले जाएंगे. कैसे बोले जाएंगे ये? इट इज 701. 701. So the number is 53,701. Similarly, you can do the other questions. Now we will do the question number 4, filling the blanks. Firstly, the smallest of 5 digit number. Smallest मतलब सबसे छोटा 5 digit का नंबर. ये आपने थर्ड क्लास में भी किया हुआ है एंड फोर्थ क्लास में भी किया हुआ है आपने, कि स्मॉलेस्ट में कौन से नंबर्स आते हैं हमारे 1 के साथ जीरोज़ वाले, है ना, और ग्रेटेस्ट में कौन से आते हैं
9 वाले. सो स्मॉलेस्ट ऑफ 5 डिजिट, सबसे छोटा 5 डिजिट का नंबर. सो वी विल स्टार्ट विद 1 से स्टार्ट करें क्योंकि 1 इज़ मैंडेटरी ना. 1 तो आएगा ही आएगा और उसके साथ बाकी जीरोज़ आ जाती हैं स्मॉलेस्ट में. तो कितनी जीरोज़ लगेंगी? रिमेंबर वी हैव टू राइट द 5 डिजिट नंबर. सो द डिजिट विल नॉट much or more than the 5 digit or less than the 5 digit. It is exactly 5 digit number. So firstly we have write the 1. Now we have to write the zeros. 1 2, देखो 1 2 3 4 5. There are 5 digit. So this is the smallest of 5 digit number. अगर ऐसे ही greatest होता तो 999 आ जाते हमारे. ओके. नाउ सक्सेसर ऑफ 99,999. सक्सेसर क्या होता है? बड़ा ना. कितना बड़ा? 1. इट इज़ लाइक द आफ्टर विच यू हैव डन इन फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्लास. आपने सब क्लासेस में ये किया हुआ है आफ्टर. बट अब हम उनको सक्सेसर बोलते हैं. आफ्टर को हम क्या बोलते हैं? सक्सेसर बोलते हैं. तो आफ्टर का मतलब क्या होता है? एक नंबर नेक्स्ट ना, कि उसके नेक्स्ट क्या आता है हमारा. सो इसमें हम 1 प्लस कर देंगे. सो वी विल हैव अवर आंसर दिस. So we have 1 lakh. This is 99,999. So our answer is 1 lakh. यानी कि इसके बाद क्या आएगा? 1 lakh आएगा. Now we have to write the numeral for 4 lakh 4. 4 lakh 4. For this you have to write the places firstly. Ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. ओके. नाउ यू हैव टू मेक द पीरियड. यू नो पीरियड हमारे कैसे बने थे? 1s, 10s, 100 से 1s पीरियड था. 1000 और 10,000 से 1000 पीरियड था. तो ये हमारे सेपरेट हो गए. नाउ वी हैव टू राइट द नंबर 4 lakh. लैख में लिखना है मतलब हमें 4 को फर्स्टली 4 की बात हो रही है ना. 4 lakh यानी कि लैख के अंदर क्या आएगा? 4 आएगा. अब लैख की तो 2 प्लेसेस हैं. तो 2 प्लेसेस में 4 को कैसे लिखेंगे? हम 04 लिखेंगे ना. 40 बनेगा तो वो तो 40 बन जाएगा. सो वी हैव टू राइट द 04. ओके. नाउ आफ्टर दिस 4 मतलब कोई 1000 नहीं आया, कोई 100 नहीं आया, तो उन सब की जगह तो क्या हो जाएगा? 0 ना. अभी जो सिंपल 4 आया है मतलब दिस विल कम्स अंडर द 1s पीरियड. अब अगर हम 1s पीरियड में हमें सिर्फ 4 लिखना है तो 4 को हम कैसे लिखेंगे? 3 डिजिट्स फॉर्म में लिखना है. तो मतलब वो कैसे लिखा जाएगा? 004. क्योंकि हम ऐसे तो नहीं लिख सकते ना कि हमने यहाँ 4 लिख दिया, 04 लिख दिया, ये तो 404 बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा ये. सो वी हैव टू राइट इट 004. अब 1000 के अंडर तो कुछ भी नहीं था. सो वी हैव टू राइट हेयर द 0. ओके. नाउ 1 lakh इज इक्वल्स टू डैश 1000. 1 lakh में कितने थाउजेंड्स आ जाते हैं? अब 1 lakh में कितने जीरोज़ होती हैं? 5 zeros. 1000 में कितनी होती हैं? 3. तो 1 lakh में हमें 1000 बताने की कितने आएंगे? अब 1 lakh में तो 5 zeros थी, 1000 में 3 zeros थी. तो हमें 1 lakh बनाने के लिए 1000 के साथ क्या चाहिए? 100 चाहिए ना. 2 zeros ये हो गई, 3 ये हो गई, 5 zeros हो गई. यानी कि 1 lakh में कितने थाउजेंड्स आएंगे? 100,000. नाउ वी हैव टू ऐड दिस. जब आप इसको ऐड करोगे देन वी हैव अवर आंसर दिस. यू कैन ऐड इट. दिस विल बी अवर आंसर. नाउ योर होमवर्क इज ट्राई टू डू रिव्यू एक्सरसाइज पेज 1 इन योर नोटबुक. जो अभी हमने ये रिव्यू एक्सरसाइज की है इसके मैंने आपको कुछ ही पार्ट्स करवाए हैं. यू हैव टू डू द रिमेनिंग पार्ट्स ऑल्सो इन योर नोटबुक. ऑल द पार्ट्स यू हैव टू डन इन योर नोटबुक. इसके सभी पार्ट्स आपको नोटबुक में करने हैं. If still you have any problem then you can ask me. Okay, bye bye.